نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے اس کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ قدم ملا دیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ ظالم کی مدد کریں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی اس انداز میں مدد کریں کہ ظلم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو روکا جائے، ظلم کرنے سے یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ کسی گناہ کو دیکھو، کسی برے کام کو دیکھو، برے فعل کو دیکھو تو ہاتھ کے ساتھ روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان کے ساتھ روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس برے کام کو، اس فعل کو دل کے اندر برا جانے، غلط جانے، یہی سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی برائی کو دیکھے، وہ کسی انسان سے سرزد ہو رہی ہو، دوسرے سے یا اپنے آپ سے، تو اس کے لیے کوشش کرے کہ انسان ہاتھ سے روکے۔ تو ظالم کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ جب وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ظلم کی چکی کے اندر وہ پس رہا ہوتا ہے، دوسرے بندے کے اوپر، مسلمان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرے اور مظلوم کی بھی مدد کرے۔ ہمارا آج کا عنوان بھی یہی ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مظلوم کی پکار، مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی آہ، مظلوم کی صدا، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اس سے ہم نے بچنا ہے، کس انداز میں بچنا ہے، بچنے کی کتنا کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہوگا، جس طرح پہلی بات ذکر ہوئی کہ ظالم کی اور مظلوم دونوں کی مدد کرنی ہے، یہ پہلی بات صرف سمجھانے کے لیے تمہید ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ظلم ہے کیا؟ ظلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں بڑی قابل غور بات ہے، ہمارے ہاں جس کو ہم ظلم شمار کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور ان کو شمار کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور کچھ ایسے گناہ بھی ہیں، کچھ ایسے عمل بھی ہیں جنہیں ہم ظلم شمار ہی نہیں کرتے۔ ظلم کی صف کے اندر ہم انہیں لے کے نہیں آتے، ظلم کی قطار کے اندر اس مظلوم کو ہم لے کے نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا، بالکل معمولی صغیرہ گناہ ہے، لیکن حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جس کو ہم ظلم شمار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کسی کی زمین کے اوپر، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لینا، ہم اسے ظلم سمجھتے ہیں، یقیناً یہ ظلم ہے۔ کسی کے مکان کے اوپر، کسی کے پلاٹ کے اوپر، کسی کے گھر کے اوپر، کسی کی دکان کے اوپر، کسی کی کوٹھی یا بنگلے کے اوپر ہم انسان یعنی ایک قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے قبضے میں ناجائز اس کو لے لیتا ہے،
ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے، حقیقتاً یہ ظلم ہے۔ ہم ان چند ایک چیزوں کو، یا انسان کسی کے جسم کو زخمی کر دیتا ہے، یا جسم کے ایک حصے کو توڑ دیتا ہے، یا انسان کے جسم کے ایک حصے کو یعنی الگ کر دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے۔ یقیناً یہ ظلم ہے، یعنی ان بڑے بڑے گناہوں کو، ان چیزوں کو ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں، کچھ ایسے گناہ بھی ہیں لیکن وہ ظلم کے اندر شمار ہوتے ہیں، ہم انہیں ظلم نہیں سمجھتے۔ میں ظلم کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کے ذہن سے بات نکل نہ جائے۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ اعمال بھی ہیں جسے ہم ظلم شمار ہی نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو رکھتا ہوں جس حدیث کے اندر 5 ایسے گناہ، 5 ایسے کام، 5 ایسے عمل گنوائے گئے ایک ہی حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر درج ہے۔ اس حدیث کے اندر 5 ایسے گناہ ہیں جسے ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے اور آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ شریعت نے انہیں ظلم کہا ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ اس بات کو اور اس حدیث کو دل کی تختی کے اوپر ایک بار نہیں اگر سینکڑوں بار بھی لکھا جائے پھر بھی کم ہے، کیونکہ معاشرے کا بگاڑ اس حدیث کے ارد گرد چل رہا ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ معاشرہ اس حدیث کی زد میں ہے یا نہیں ہے، جسے ظلم ہی نہیں کہا جاتا۔ ہمارا عنوان بھی یہی ہے، مظلوم کی مظلوم کی پکار سے بچنا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، معروف حدیث ہے، اتدرون ما المفلس؟ آپ جانتے ہیں مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے، من لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے کے پاس، جس انسان کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، دنیا کے اخراجات نہ ہو، دنیا کی چیزیں اس بندے کے پاس موجود نہ ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، اپنے معاشرے کے اندر ہر ایک شخص کی الگ الگ زبان کے اندر اس مفلس کا ترجمہ کیا جائے تو یہی معنی بنتا ہے۔ ہماری زبان کے اندر مسکین کو مفلس کہا جاتا ہے، جس بندے کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو اسے مفلس اور مسکین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے درست جواب دیا تھا اپنے ذہن کے مطابق کہ مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے بتایا کہ مفلس اسے کہتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی بات سے ایگری نہیں ہوئے، متفق نہیں ہوئے، آپ نے پھر الگ ہی مفلس کا ترجمہ کیا، اس کا معنی بتایا، اس کا مفہوم بتایا، اس کی وضاحت کی ہے کہ مفلس جسے تم کہہ رہے ہو یہ مفلس نہیں ہے، مفلس یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان المفلس من امتی، اے میرے صحابہ کی جماعت، مفلس یہ ہے، میری امت میں سے ہوگا، مفلس میری امت میں سے ہوگا، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، مفلس میری امت میں سے ہوگا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں، بڑا نیک ہوگا، بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، اس بندے کے پاس، اس مفلس کے پاس نماز کی صورت میں عبادت موجود ہوگی، سیام کی صورت میں روزے موجود ہوں گے، اس انسان کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں یہ عبادت موجود ہوگی، بڑا نیک شخص ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت میں آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا میں بتا رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کتنا بڑی عبادت ہے، صرف ایک قول آپ سمجھے۔ المدارک الصف کے اندر یہ بات درج ہے، امام یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں جس بندے کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں، جس بندے کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، جس بندے کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں، 2 چیزوں کا خوبی، 2 چیزیں اس بندے کے پاس موجود ہے، 2 چیزوں کا وہ مالک ہے، 2 خوبیاں اس کے پاس ہیں، اس کے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ نماز کا پابند ہے،
नमाज सलात का पाबंद है। दूसरी उस बंदे के अंदर खूबी यह है कि अपनी जबान पे कंट्रोल कर लेता है। जिस बंदे के अंदर ये दो खूबी है, फरमाया कि इस बंदे को कामयाबी से दुनिया की कोई चीज रोक ही नहीं सकती। कामयाबी किसे कह रहे हैं? जन्नत को कह रहे हैं। कामयाबी जन्नत को कह रहे हैं, दुनिया की नहीं है। कोई ऐसी चीज जो इस बंदे को, जिसके अंदर ये दो खूबियां, नमाज की हिफाजत करने वाला और अपनी जबान पे कंट्रोल करने वाला, इस बंदे को जन्नत जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। आप देख ले, इन दो चीजों की जमानत भी मांगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपनी बात पे है ये मुफलिस शख्स, इसके पास नमाज की सूरत में इबादत है। आप अंदाजा लगाए कितना बड़ा ये नेक होगा, कितना बड़ा नेक होगा, जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं नमाज की सूरत में इबादत मौजूद है। फरमाया कि फिर इस बंदे के खाते के अंदर, जहां ये इबादत दर्ज है, लेकिन इस बंदे के खाते के अंदर नेक जरूर है, परहेजगार जरूर है, इबादत करने वाला जरूर है, लेकिन इस बंदे के खाते के अंदर कुछ जुल्म भी है। वो 5 किस्म के जुल्म भी ये दुनिया के अंदर ये करता था। फिर इस बंदे की नेकियां कैसे ज़ाय होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 5 जुल्म इस नेक बंदे के गिनवाए हैं। इस नेक बंदे के गिनवाए वो कौन सा है? सबसे पहले फरमाया कद शाता महादा, ये अपनी जबान से गाली को नहीं रोक सकता था। जब इसको मौका मिलता था, ये ताजिर है, ये मालिक है, ये ओहदेदार है, ये बड़ा लीडर है, कुछ भी है, जब ये जिसके ऊपर दिल चाहता ये अपनी जबान को दराज करता था। कद शाता महादा, ये गाली बिला झिझक, बिला दार ये गाली दे देता था। कद शाता महादा, जिसको ये गाली दे रहा था वो मजलूम है, ये गाली देने वाला ये जालिम है। शरीयत इसे जालिम कह रही है, ये जुल्म की तारीफ है। आप अंदाजा लगाए हम में से कितने ऐसे लोग हैं, किसी को बुलाते हुए पहले उसका इस्तकबाल गाली से देंगे, उसका इस्तकबाल गाली से करेंगे, उसको बुरा बुरा कहेंगे, अगरचे मोहब्बत में कह रहे हैं। कैसी मोहब्बत है? उसका इस्तकबाल गाली से किया जा रहा है। ये मोहब्बत है? ये उसके साथ हमदर्दी है? ये उसके साथ खैर खई है? उसके साथ तो खैर खई कर रहा है, अपनी जान के साथ जुल्म कर रहा है। जुल्म की चक्की के अंदर तू शामिल हो रहा है, जिसे तू गाली दे रहा है वो मजलूम है, तू जालिम है। कद शाता महादा, ये इबादत है, नेगुजार है, शरीयत ने इसे जालिम कहा है। एक बात। दूसरी बात वक़द काज़ा फहाजा, दूसरा इसका गुनाह ये है, दूसरा इसका जुल्म ये है, वक़द काज़ा फहाजा, नहीं सोचता था, नहीं समझता था, जिस पे दिल चाहता ये तोहमत लगा देता था, जिस पे दिल चाहता ये इल्जाम लगा देता था। कद काज़ा फहाजा, ये इल्जाम की बुछार कर देता था। अगर खवातीन ये बात सुन रही है, ये उनके लिए भी जरूरी है, छोटी छोटी बात पे ये इल्जाम तराशी करना, ये इल्जाम लगा लेना, ये बोहतान लगा लेना, इतना आसानी से ये अमल कर लेते हैं हम, लेकिन शरीयत ने इसे जुल्म कहा है। जिस पे लगाया जा रहा है वो मजलूम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, अगर आपके पास बात है तो पहले तहकीक करे, फिर उसको अपनी जबान से अदा करे। शरीयत ने पाबंद किया है कि नहीं सोचे, नहीं समझे और उसके ऊपर ये तोहमत लगा दी है। ये दो गुनाह और ये दो जुल्म इस बंदे के खाते के अंदर ये मौजूद होंगे। जो नेक शख्स मुफलिस होगा, ये दो बातें। तीसरी बात, अकाला माल हादा, नहीं समझता था, दुकानदार था, ये ओहदेदार था, सरमायादार था, लीडर था, बड़ा भाई था, किसी ओहदे पे, किसी चीज पे, किसी स्टेज पे ये जिंदगी बसर कर रहा था। अकाला माल हादा, जब इसको मौका मिलता ये किसी शख्स का ये माल खाने में देर नहीं करता था, किसी की नजायज ये कटौती कर लेता है, किसी के साथ किस अंदाज में, कभी ये नाप तोल के अंदर कमी, कभी अपनी बहनों या बेटियों का हक, कभी रिश्तेदारों का हक, कभी इस सूरत में, कभी रिश्वत की सूरत में, किसी ना किसी तरीके से अकला माल हादा, ये लोगों का ये माल खाया जाता था। ये इसका ये जुल्म है, जिसके ये माल खा रहा है वो मजलूम है, ये बंदा जालिम है। 3 बातें।
चौथी बात फरमाया कि वह साफा का दमहादा, इसको मौका मिलता था किसी का खून कर लेता था या खून करवा देता था, बड़ा होता था, बड़ी पावर थी इस बंदे के बाद, और ये खून करवा देता था। और ये खून करवाने वाला, ये करने वाला, ये जालिम है, जिसका हो रहा है या जिसका किया जा रहा है वो मजलूम है। चार बातें। पांचवी और आखिरी बात यह है, वजारा बहाजा, मौका मिलता अपने हाथ को ये चलाता रहता था, कभी बच्चों के ऊपर, कभी छोटों के ऊपर, कभी औरतों के ऊपर, कभी किसके ऊपर। जब इसको मौका मिलता अपने हाथ को ये इस्तेमाल करता, लोगों को मारता था, नाजायज मारता था। जिसको ये मार रहा है वो मजलूम है, ये मारने वाला ये जालिम है। ये 5 गुनाह शरीयत ने गिनवाए हैं, शरीयत ने बताए हैं। ये नेक शख्स जिसे मुफलिस शरीयत ने कहा है, इसके खाते के अंदर ये 5 जुल्म मौजूद होंगे। इबादत गुजार जरूर है, नेक जरूर है, लेकिन ये साथ साथ जुल्म भी करता था। आप देखें ये 5 के 5 गुनाह हकूकुल इबाद के साथ इनका ताल्लुक है, हकूकुल्लाह के साथ नहीं है। 5 के 5 गुनाह हकूकुल इबाद के साथ ताल्लुक है। इबादत तो करता था, अल्लाह ताला का हक अदा करता है, नमाजी और परहेजगार है, लेकिन लोगों के साथ ये सलूक करता था, ये उसका जुल्म है, ये जुल्म है। ये जुल्म की तारीफ हो रही है। अगर बात समझ नहीं है तो इससे आगे देखें। इनमें से सिर्फ एक चीज की जरा सा वजाहत कर दो जो हमारे माशरे के अंदर बड़ी आम है, बड़ी आम है। मर्दों के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, अनपढ़ पढ़े लिखे किसी भी ओहदे पे हैं, बिना सोचे समझे ये कर लेते हैं। आप देखना, मैं इसकी वजाहत करता हूं, आपको ये बात समझ आएगी। हर एक शख्स इल्ला माशाअल्लाह लग लोग इसके अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। बात बहुत ज्यादा है जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है, गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि शरीयत ने उसे जुल्म कहा है। जुल्म एक कबीरा गुनाह है। वो कौन सी बात है? इस हदीस के अंदर जो दूसरे नंबर पे बात थी, वक़द क़ज़फ़ हाज़ा, लोगों पे तोहमत लगा देना, ये छोटा गुनाह नहीं है। और ये तोहमत, ये इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बंदा ये है, फला ये है, उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर ये खामी है। मेरे भाई तहकीक की ये सुनी सुनी बातें कर रहा है, और अपनी दुकान या अपने चौक या घर के अंदर बैठ के हम नहीं सोचते, ये कमेंट दे देते हैं। पता नहीं है हमारे कमेंट फरिश्ते लिख रहे हैं, हमारी ये बातें फरिश्ते नोट कर रहे हैं। नहीं सोचा समझा, इल्जाम दे दिया, इतना बड़ा गुनाह है। आप देखें, और जिसके ऊपर ये तोहमत लगाई गया वो मजलूम है। अगर उस मजलूम की आह निकल गई, इस इंसान को बर्बादी से कोई बचा ही नहीं सकता। मैं आगे जिक्र करूंगा, मजलूम की जब आह निकलती है तो कैसे ये कबूल होती है, और कैसे ये दुनिया और शख्स ये तबाह हो जाता है, और मजलूम की आह कितना जल्दी अल्लाह ताला के पास जाती है, इसका जिक्र करूंगा। लेकिन आप ये बात समझे, सईद बिन ज़ैद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं। अशरा मुबशरा जिन्हें दुनिया के अंदर वो 10 सहाबा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है, उनमें से एक सईद बिन ज़ैद भी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही बुखारी की हदीस है, मरवान बिन हकम के दौर में, इनका ये दौर खिलाफत है, एक औरत आती है जिसका नाम अरवा है। अरवा नामी ये औरत आती है मरवान बिन हकम की अदालत में, आकर कहती है कि ऐ मरवान बिन हकम, वक्त के हुक्मरान, मेरा एक केस है, मेरा एक मसला है, इसको हल किया जाए, क्या मसला है? मरवान बिन हकम उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनकी अदालत में एक औरत केस लेके आई है। किसके खिलाफ लेके आई है? सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल है, अशरा मुबशरा सहाबा में इनका शुमार होता है। इतना अकाबिर सहाबा में इनका शुमार, बड़े मुत्तकी और परहेजगार, जिन्हें दुनिया के अंदर बिशारत मिली है। आप अंदाजा लगाएं कितना बड़े नेक होंगे। इनके खिलाफ ये औरत, अरवा नामी ये औरत, ये केस लेके आई है, आकर कहती है, ऐ मरवान बिन हकम, सईद बिन ज़ैद ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी जमीन के एक टुकड़े के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है। मैं जब मांगती हूँ, सवाल करती हूँ, वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये केस और मसला लेके आई हूँ, सईद बिन ज़ैद को बुलाए और ये जमीन का कब्जा मुझे वापस दिलवाए। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मरवान बिन हकम बुलाते हैं। मरवान बिन हकम की
अदालत में सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। मरवान बिन हकम ने पूछा क्या ये औरत सही कह रही है? आगे से ये जवाब आता है, आगे से सईद बिन ज़ैद कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आए मरवान बिन हकम वक्त के हुक्मरान, क्या आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में है। सही बुखारी की हदीस है, मेरे इल्म में है। यहाँ एक हदीस सुनाते हैं, मेरे इल्म में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने दुनिया के अंदर सिर्फ एक बलिष्ठ किसी इंसान की जुल्माना तरीके से जमीन अपने नजायज कब्जे में की है, फरमाया कि सबआ अर्ज़िन, क़यामत के दिन 7 जमीनों की तोक बना के इस बंदे के गले के अंदर डाल दिए जाएंगे। मैंने ये हदीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैं कैसे इस औरत की जमीन के एक टुकड़े के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर कब्जा कर सकता हूं? मैंने कब्जा नहीं किया, ये औरत झूठ बोल रही है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी सफाई पेश करते हैं, मरवान बिन हकम आगे से कहते हैं, यहां आप अपने लिए कोई सबूत लेके आए, सबूत दे। ये हदीस तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, आप सबूत दे, ये अदालत है। आपने ऐसा किया है नहीं, क्योंकि कागजात पेश करें। यहां सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के पास कोई कागजात नहीं है। कहा यह औरत झूठ बोल रही है। यही खड़े खड़े अभी अदालत के अंदर मौजूद है, मरवान बिन हकम की अदालत है, यही खड़े खड़े इल्जाम लगाया था। इस औरत ने तोहमत लगाई थी, इल्जाम लगाया था। आप अंदाजा लगाए, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। फिर क्या कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में, क्यों यहां मजलूम है? सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला मजलूम है, मजलूम किया। यही अदालत में खड़े होके कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठ बोल रही है, इन कानत काज़िबतन, ऐ अल्लाह ये झूठ बोल रही है अगर, फ़उम्मा बसरहा, ऐ अल्लाह इसे अंधा कर दे, वक्तुलहा फी अर्दिहा, अल्लाह इसी जमीन में इसे हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। ये दो ही दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में अपना केस छोड़ देते हैं, कहते हैं ये जमीन सब कुछ ये ले जाए। दो ही दुआएं करते हैं, फ़उम्मा बसरहा वक्तुल फी अर्दिहा, अल्लाह इसे अंधा कर दे और इसी जमीन के अंदर इसे हलाक कर दे। मुहद्दिसीन ने लिखा है आखिरी उम्र में ये औरत बड़ी उम्र पाती है, पाने के बाद फिर ये अंधी हो जाती है, अपनी बिनई से ये चली जाती है। एक वक्त ऐसा आया था अपनी जमीन का ये चक्कर लगा रही है, खुशी के मौके पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ, ये गड़े के अंदर घिरी, उसी जमीन के टुकड़े में जिसके ऊपर इसने इल्जाम लगाया था, उसी के अंदर ये घिरी और हलाक हो गई। इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। और मजलूम की अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे सुनते हैं? हम समझते हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये तो मामूली बंदा है, ये ऐसा है, ये छोटा है, ये क्या कर सकता है मेरा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो नफरी भी नहीं है, लोग भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या कर सकता है? उठा के डालो इसको, इसके साथ ये अमल कर लो, क्या कर सकता है? मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अजीज कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसने अपना मसला उस जात के हाथ सपुर्द कर दिया, बताओ उससे कोई ताकत वाली जात कोई है दुनिया के अंदर? जिसका साथ अल्लाह ताला दे उससे कोई बड़ी ताकत वाली है? इस मजलूम का जिसके ऊपर जुल्म किया गया है उसका सहारा तो अल्लाह ताला है। उससे कौन टक्कर लेगा, उससे कौन मुकाबला करेगा? तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह है, ये तो दुनिया के अंदर सजा है, आखिरत की सजा भी सुन ले आप, किस कदर ये जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू दाऊद के अंदर ये हदीस दर्ज है, कल क़यामत के दिन दुनिया के अंदर जिसने जिस शख्स के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म किया होगा तोहमत लगाते हुए, कल क़यामत के दिन जहन्नमियों की निकलने वाली पीप इस बंदे की खुराक होगी।
जहन्नमियों को निकलने वाली पीप, इस तोहमत लगाने वाले बंदे के ये इसकी ग़िज़ा होगी, ये इसे पेश किया जाएगा, ये उस सारे का सारा गंद ये तेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तेरे लिए बनाई है दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर ये तू इल्जाम और तोहमत लगाता था। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, ये जुल्म है किसी पे तोहमत लगाना। पहले सबसे पहले तहकीक जरूरी है, फिर आगे बात है। आगे आप चले, जुल्म क्या है ये आपने इसकी वजाहत सुनी है। और मजलूम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूम से बचने की बार बार तलकीन की है। तीसरी बात, मजलूम से बचने की, मजलूम की बद्दुआ से, उसकी और उसकी पुकार से बचने के लिए आपने बार बार हुक्म दिया है, तलकीन किया है। पहली हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया कि इत्तकी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाह हिजाब। मजलूम जब अपनी आह निकालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान और इस मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। जब ये आवाज निकाले बिना पर्दे के अल्लाह ताला तक ये आवाज पहुंच जाती है। एक बात, मजलूम की आह, मजलूम की पुकार के मुतालिक आप सुन रहे हैं। अगर मजलूम अपनी आह निकाल दे तो किस कदर अल्लाह ताला के पास ये बात पहुंचती है। दूसरी बात, जो मुस्तदरक के हाकिम के अंदर सिलसिला सय्या के अंदर ये बात दर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब ये मजलूम अपनी आह, अपनी पुकार अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस मजलूम की आह और पुकार इतना तेजी के साथ, इतना तेजी रफ्तार के साथ जाती है, फरमाया कि कअन्नहा फीहा शिरारुन, जैसे इंसान एक लकड़ियों गठली बड़ी लेके आए और सारी की सारी वो खुश्क हो, उसको आग लगाए तो आग का कैसे ये शोला पैदा होता है, या ऐसे समझे ऐल को यानी पेट्रोल को आग लगाई जाए तो कैसे ये शोला पैदा होता है। इतना तेज रफ्तार में इस मजलूम की आह अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये पहुंच जाती है, इतना तेज रफ्तार में ये पहुंचती है। दो बातें। तीसरी बात, इस मजलूम की आह जब ये निकालता है, आवाज लगाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, इत्तक़ू दावतल मजलूम, इस मजलूम की आह को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये बादल का एक टुकड़ा आता है, इसकी आह को लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला जाता है। अल्लाह ताला, ये इब्ने हिबान के अंदर ये बात दर्ज है, जब ये बादल का टुकड़ा इस मजलूम की आह को लेके जाता है, अल्लाह ताला इस मजलूम की आह का इस्तकबाल कर ले आते हैं। अल्लाह इस्तकबाल करने आते हैं। सिर्फ इस्तकबाल नहीं करते, किसी के ऊपर जुल्म किया गया तो आज ही जाके माफी मांग ले, आज ही माफी मांग ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तकबाल करने इस आह के आते हैं। फिर इतना नहीं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वल्लाही मिन इज्जती व जलालिही, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, लअनसुरन्नका लौ बादा हीन, ऐ मजलूम की आह, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा, अगरचे कुछ देर के बाद ही क्यों ना की, मैं तेरी मदद जरूर ही करूंगा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कह रही है। आप देखें, इंसान दुनिया के अंदर अपनी आंखों से नहीं, अपनी औलाद में देखता है लड़ाई फसाद झगड़ा। आप कितने ऐसे खानदान हैं जिनको मैं जानता हूं, उनकी पीछे की हिस्ट्री देखे तो किसी न किसी के ऊपर जुल्म करके आए होते हैं, आज उन्हें ये भुगतना पड़ता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान के मजलूम की आह को जरूर पूरा करते हैं और इसकी मदद करते हैं। अगरचे देर हो जाए लेकिन पूरा जरूर करते हैं। अगर बात समझ नहीं है तो चौथी हदीस देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब ये मजलूम अपनी आह अपनी जबान से निकाल देता है, ये उस जालिम का पीछा क़यामत तक ये मजलूम की आह करती रहती है। क़यामत तक इंसान ने जवानी में की है, बुढ़ापे में ये पीछे है, कब्र में गया है, ये आह पीछे है, हशर में खड़ा हुआ है, ये आह पीछे है,
اس کے ساتھ یہ چمٹی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، جب تک اس مظلوم کی آہ کو پورا نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ مظلوم اپنی آہ نکالتا ہے، اپنی پکار نکالتا ہے، قیامت تک اس ظالم کا یہ پیچھا یہ آہ کرتی رہتی ہے، اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مظلوم کی آہ سے بچتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی آہ سے بچتے تھے بذات خود۔ کیسے؟ جب بھی آپ سفر سے اب مدینہ سے باہر جاتے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں، یہ جہاد کا سفر ہے، یہ تبلیغ کا سفر ہے، یہ حج کا سفر ہے، یہ عمرے کا سفر ہے، اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مظلوم کی آہ سے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا مظلوم کی آہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو 3 باتیں سمجھا دی ہیں، 3 باتیں سمجھا دی ہیں۔ ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ بتایا میں نے دوسری بات، ظلم کیا ہے؟ جس کو ہم بڑے بڑے گناہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ظلم میں آتے ہیں، چھوٹے اور معمولی، جسے ہم بالکل معمولی اور اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے ادا کر لیتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ میں نے یہ بتا دیا۔ پھر یہ مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے دل سے نکل جائے، پھر اس انسان کو بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے، دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکر لے اور اسے بچا لے؟ مظلوم کی آہ سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے آج تک انجانے یا جانے میں کسی کے ساتھ گالی گلوچ تہمت یا کسی حوالے سے ہم نے ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناجائزی کی ہے، تو میرا فریضہ ہے موت کا پتہ نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے، کہاں تبدیل ہو جائے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، وقت چینج ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہے بیماری آ جائے یا موت آ جائے، ختم ہو جائے۔ آج ہی جا کے انجانے یا جانے میں کسی کے ساتھ شک بھی ہے، جا کے اس سے معافی آج مانگ لے، ورنہ قیامت کی سزا بڑی سخت سزا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔